নমস্কাৰ নিউজকাষ্ট ষ্টুডিঅ'ত মস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণি টেক ব্ৰেকিং নিউজ আজি দেশে ভ্যাকচিন প্ৰদানত পুতিলে মাইলৰ খুঁটি 100 কোটি কৰোনাৰ ভ্যাকচিন প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ 75% প্ৰথম পালি ভ্যাকচিন প্ৰদান 31% লোকে গ্ৰহণ কৰিলে দুয়ো পালি ভ্যাকচিন প্ৰতি ছেকেণ্ডত দেশত দিয়া হৈছে 700 টাকৈ ভ্যাকচিন 9:47 100 কোটি ভ্যাকচিন প্ৰদান স্পৰ্শ কৰিলে ভাৰতে দেশবাসী তথা চিকিৎসকক শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৰ্বাধিক ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰা শীৰ্ষ থকা ৰাজ্য ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিম বংগ গুজৰাট আৰু মধ্য প্ৰদেশ পুনৰবাৰ জনাইছো যে 100 কোটি কৰোনাৰ ভ্যাকচিন ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে পূৰ্বতীয় সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো संकट हमारे यहाँ कोविड का आया था उसको पूरा करने के लिए हरियाणा बहुत सुदूर आगे तक पहुंच गया था जहां तक वैक्सीनेशन का संबंध है आज जो बताया गया है कि 100 करोड़ का ये आंकड़ा आज देश ने पूरा किया है मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ ही एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा की हमारी आबादी मात्र 2% है लेकिन आज ही के दिन हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये कंप्लीट करने जा रहे हैं तो 2.5% का हमारा इसमें योगदान है इसको बहुत जल्दी 100% तक हम लोग पहुंचाएंगे हम लोगों ने सीरो सर्वे ये कराया है और मैं समझता हूं बहुत बड़ा सैंपल 35,000 सीरो सर्वे का सैंपल कराने के बाद 76.3% ये जो सीरो पॉजिटिविटी ये पाई गई है मैं आश्वस्त हूं कि कोविड-19 की महामारी पर अब पूर्ण नियंत्रण होगा और आगे इसको रोकथाम के लिए हम सब इसका प्रयत्न करने वाले हैं अंत में सीएसआर के तहत प्रदेश सरकार का सहयोग करने वाली सभी कंपनियों का आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर पर सीएसआर के माध्यम से जो इन्फोसिस कंपनी ने आज ये बड़ा काम किया है इसका बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूं मैं मानता हूं कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं इसलिए अपनी बात को यही विराम देता हूं धन्यवाद धन्यवाद महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की उत्कृष्ट परंपराओं में आज एक और अध्याय का सृजन होते हुए अब समय है उस मंगलमय आगाज का मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं रिमोट का बटन दबाकर इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करें इसे राष्ट्र को समर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जोरदार तालियों से लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर ऐतिहासिक क्षण धन्यवाद महोदय आइए विश्राम सदन की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई इस लघु फिल्म के माध्यम से As India steps into its new future and takes its place as a global power, it has sought to revolutionize the way that healthcare is delivered to its citizens. Over the recent years, under the able leadership of Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, the country has seen a tremendous growth in programs and efforts that have positively impacted public healthcare. And a key focus area has been to improve the lives of those with cancer. For those who are battling cancer, highly specialized treatment is often necessary, and thus, to help them, the National Cancer Institute or NCI in AIIMS Jhajjar, Haryana was envisioned by the Government of India. The vision for this campus was to have a state-of-the-art cancer hospital which is focusing not only on high-end patient care but also on research and academic activities. This is a large 700-bedded hospital. It has 25 state-of-the-art operation theatres and it has a huge faculty of more than 2,000 members so that we are able to address the needs of the nation, whether it be prevention of cancer, early diagnosis or treatment for cancer. As the center became operational and scaled its services to patients, its efforts soon caught the eye of the Infosys Foundation, which shared the Prime Minister's vision of transforming healthcare across India in a holistic manner. Ours is a 1.4 billion people country. This is the duty of the non-profit organization which should help government facility like AIIMS where expert doctors are available, treatment is available but accommodation is not available. That made me to think of a place where patient can rest in the night. So we decided
we should build something for the patient and their relatives. The Vishram Sadan, or rest house, was envisioned by the Infosys Foundation as an 800-bedded facility for patients and their attenders. Spread across 25,000 square meters, this multi-storied building would house a common dining facility, pharmacy, and utility shops. But most importantly, it would house 5 floors of dormitories and 3 floors of private rooms. This facility would be of immense benefit for underprivileged patients and their attenders who often came from distant places for treatment. It would also help create a safe living environment for patients who are immunocompromised. Thus, the Infosys Foundation Vishram Sadan fit perfectly into the aim of the government to tackle cancer and make treatment affordable to all. With the building completed, patients can be accommodated safely and comfortably. They now have a stronger footing to take on their battle with cancer, a battle where the Infosys Foundation stands with them in every step of the way. Thank you, Infosys Foundation. सेवा परमो धर्मा, स्वांत सुखाय जैसी भारतीय परंपराओं को नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर पुनः गुंजित करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे जिनका हर विचार राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद है। मान्यवर, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया अपने उद्बोधन से देशवासियों को गौरवान्वित करें। अपना आशीर्वाद हमें दे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नमस्कार जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, संसद के मेरे सहयोगी गण, विधायक गण, अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को
बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास। ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुड़ती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है कि इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स जज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहज सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रति करुणा से भरी हुई है। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले उनके विचार, उनके कार्य हर किसी को प्रेरित करते हैं। इस विश्राम सदन में उन्होंने सहयोग के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। साथियों, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। आयुष्मान भारत, पीएम जय भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान मैं व्यवहार करूँ आटातके सबल और सतेज सीमेंट सूर्या सीमेंट। सूर्या सीमेंट अटूट घर अटूट अखम। अगर समाज और सरकार की पूरी ताकत लगेगी तो हम लक्ष्य को बहुत जल्द ही हासिल कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले एक इनोवेटिव पहल हुई थी, सेल्फ फॉर सोसाइटी। इससे जुड़कर हजारों संस्थान और लाखों लोग समाज के हित में अपना योगदान दे रहे हैं। भविष्य में हमें अपने प्रयासों को और संगठित तरीके से आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जागरूकता बढ़ानी है। आजादी के अमृत काल में एक हेल्दी और वेल्दी फ्यूचर के लिए हम सभी को मिलकर काम करते रहना होगा। और ये सबके प्रयास से ही होगा, समाज की सामूहिक शक्ति से ही होगा। मैं एक बार फिर सुधा जी, इन्फोसिस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है।
अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच আৰু ইতিমধ্যে কেনেদৰে আচলতে এই মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হ'ল দিশত সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনটোত মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, যিহেতু সমগ্ৰ দেশবাসীকে এটা ভাল খবৰ ইতিমধ্যে পুৱাই এই প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি দেশে পালন কৰিছে মাইলৰ খুঁটি 100 কোটি কৰোনাৰ ভেকচিন প্ৰদান সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ 75% প্ৰথম পালি ভেকচিন প্ৰদান হৈছে, লগতে 31% লোকে গ্ৰহণ কৰিছে 2 পালি ভেকচিন। প্ৰতি ছেকেণ্ডত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে 700টাকৈ ভেকচিন। 9:47 ইতিমধ্যে ভাৰতে 100 কোটি ভেকচিন প্ৰদানৰ যি ঘৰ সেয়া স্পষ্ট কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভতে দেশবাসীক শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সৰ্বাধিক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ শীৰ্ষত থকা ৰাজ্যকেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিমবংগ, গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু ইয়াৰ লগতে সমস্ত নিউজ স্কেনৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা।